technical lecture. We have Dr. Nidhi Agrawal from Sakarni Plaster India Private Limited, and she will be talking on the power of gratitude. So that's the presentation, Dr. Nidhi Agrawal, and we welcome her. So, in the meanwhile that we make preparations on the days and get the right presentation uploaded, let me introduce you to Ms. Nidhi Agrawal. She's an award-winning dietitian, a clinical nutritionist, and a lifestyle coach from Delhi, and has worked with Sir Gangaram Hospital, comes with over 8+ years of experience, is blessed to be the daughter-in-law of Mr. Ashok Gupta, the founder of Sakarni Group, and she provides diet plans according to your blood test reports, medical condition, and ongoing medicines, while also blending Ayurveda in her plans. And she has in fact successfully reversed diabetes, high blood pressure, high cholesterol, PCODs, thyroid, depression, and many other lifestyle disorders. So we welcome once again Ms. Nidhi Agrawal, and if I may request Mr. Sanjeev Gupta to kindly welcome on behalf of all of us here at IPCA, a little green welcome to Dr. Nidhi Agrawal. Now this is a little seed box, and we thank you for joining us here today. And with that, I hand it over to you. Thank you, everybody. Thank you for introducing me so beautifully. Thank you for giving me a chance to speak in front of such an amazing audience. And thank you for listening me so patiently. Thank you so much. पहले तो जो लोग यहाँ आए हैं उनके लिए जोरदार तालियां. It is not a technical lecture. थोड़ा सा change करते हैं. I am here to share my life experience with you, which has changed my life. And I promise, if you just focus 15-20 minutes of your time here, it will change your life too. मेरे से बहुत experienced लोग यहाँ बैठे हैं, but I am just here to share my experience with you all. I am not here to sell any product. ना ही मैं कोई ज्ञान बांटने आई हूँ. I am just here to share my experience. ये बात हमें already पता है जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ. But we don't know the power of it. For that, I would like to request you all to please keep your cell phones on silent mode for some time. And if you could shift little further, that will be really appreciable. So is morning walk good for our health? Thank you so much for everybody who is shifting forward. ये सब, is morning walk is good for our health? It is good. हम सब जानते हैं. राइट मैं जान सकती हूं कि कितने लोग मानते हैं और कितने लोग फॉलो करते हैं. आई थिंक 50% कम लोग फॉलो करते हैं. सिमिलरली जैसे हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन करते नहीं है, आज का टॉपिक भी उसी पर है. हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन करते नहीं हैं. और अगर हम करने लग जाएं, so you don't know the power of it. It will change your life drastically and completely, as it has changed my life. I am the happiest person in the world. I am.
एंड एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन आप भी बोलोगे आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। आपको इस इमेज में, पिक्चर में 2 फेसेस दिख रहे हैं, राइट? ऐसी फेसेस कुछ यहां बैठे हैं, कुछ हैप्पी है, कुछ सैड है। मे बी हैप्पी कि कुछ टाइम के लिए वाइफ दूसरे हॉल में है, हम शांति से और आराम से अब कंफर्टेबली सुन रहे हैं। कुछ लोग उदास है, सैड है, काश हमारी फैमिली साथ बैठी होती तो हम भी इंजॉय करते, राइट? सो कौन सा फेस आपको देखने में अच्छा लग रहा है? हैप्पी फेस। आई एम सॉरी, थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहेगा, कोई सोएगा नहीं यहाँ पर, थोड़ा सा बातचीत करते रहेंगे। सो हमें खुश रहना पसंद है, राइट? लेकिन कैसे रहें खुश, ये तो पता ही नहीं। तो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, हम जिसलिए खुश नहीं रहते, वी गो टू डिफरेंट पीपल टू गेट देयर सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, बट वी डोंट नो, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें बेस्ट सोल्यूशन दे। बट माई डियर फ्रेंड्स, द सोल्यूशन लाइज विद इन अस। जब मैं छोटी थी, एक कार्टून आता था आई ड्रीम ऑफ जिनी के नाम से। सो उसमें मैं देखती थी कि वो गर्ल आई ब्लिंक करती और मैजिक हो जाता, और मैं सोचती काश मेरे पास ये मैजिकल प्रैक्टिस होती, मैं भी जो चाहती मुझे मिलता। बट आई नेवर न्यू, बिकॉज आई यूज टू थिंक ये तो कार्टून है, ये तो होता नहीं है। बट नाउ आई कैन से विद अ गारंटी इट इज पॉसिबल, इट इज ट्रू, मैजिक हैपेंस। हाउ? क्या बिलीव करते हैं मैजिक होते हैं? बिलीव करते हैं? मुझे लग रहा है आधे लोग सो गए हैं। अब इसमें से ये बताएं, आप सबको क्या चाहिए? पैसा, गुड रिलेशंस, बहुत सारी खुशियां, अमेजिंग हेल्थ, या फिर पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना? कुछ तो ड्रीम्स होंगे, कुछ चाहते होंगे हम, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सब कुछ चाहिए होगा। कुछ है? कुछ चाहिए किसी को? वेरी गुड। और मैं कहूं इस सेशन के बाद आपको सब मिलने वाला है, और जो सोच रहे उससे भी ज्यादा मिलने वाला है। इनफैक्ट इस इमेज में आपको 2 पिक्चर्स दिख रही हैं। सो कैन वी रिलेट, क्या दिख क्या रहा है हमें इसके अंदर? So I think we can relate to positive and negative situation. One is giving a very positive vibes, happy, and one is giving a negative vibes. So जो उदास है, we would never like to go to him because वो अपनी problems में इतना engrossed है, वो हमें क्या guidance देगा. But जो happy है, we can relate to some motivational person जिसका aura बहुत strong है, maybe सदगुरु या फिर शिवानी बहन, जिनको we often listen and we feel so motivated, right? Because their aura is so positive. कहते हैं ना कि वो हमारे घर पर उन महात्मा को बुला लो या समथिंग, उनके पैर पड़ जाए तो शुभ हो जाएगा. पैर शुभ नहीं होते, ऑरा पॉजिटिव होता है. सो वो कैसे करें? अब आप ये तो बता सकते हैं कि लाइफ में किस चीज की कमी लगती है, किसी भी एरिया में, चाहे हेल्थ में, चाहे फैमिली में, चाहे लगता है ट्रैवल में, लगता है बिजनेस को मुझे इस मुकाम पे लेके जाना है, या लगता है मुझे इस चीज की कमी है. किसी चीज की तो कमी लगती होगी. बैलेंस की कमी. और किस चीज का बैलेंस? लाइक फैमिली लाइफ एंड द बिजनेस समथिंग. एंड व्हाट एल्स? प्लीज इंटरैक्टिव रहिए. या लगती नहीं, कमी नहीं लगती, सरप्लस की प्रॉब्लम है, हर चीज थॉट्स की प्रॉब्लम है. अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी ना, आप बोलोगे डेफिशिएंसी तो है ही नहीं कोई हमारी लाइफ में. अब इनको देखिए. Do you now still feel that you have any deficiency? कुछ चीज की कमी है. They are not even blessed with basic sense organs. They don't have the sense to even do mobility on their own. And we are so blessed. भगवान ने हमें 2 आंख दिए हैं, 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, जिससे आप इंडिपेंडेंटली कहीं भी मूव कर सकते हो without being dependent on anybody. You can watch the world around with your beautiful eyes. 2 मिनट आंख बंद करके वॉक करोगे, यू विल बैंग योर सेल्फ. आर वी ग्रेटफुल फॉर द ब्यूटिफुल सेंस ऑर्गन्स एंड द गिफ्ट ऑफ बॉडी द गॉड हैज गिवन अस? बड़े लोग कहते हैं सेट योर डे विद अ पॉजिटिव माइंडसेट. कहते हैं ना. चलिए एक बार जोरदार तालियां कर दीजिए फॉर द ऑर्गेनाइजर्स हु हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस अमेजिंग इवेंट. थैंक यू सो मच. सो बड़े कहते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव माइंडसेट तो दिन अच्छा जाता है, होता है ना.
एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप सुबह उठे, सपोज अलार्म नहीं बजा, आप लेट हो गए, आप रशअप करते हुए उठे और एकदम से आपने कहा शिट मैं तो लेट हो गया। आप देखेंगे इवेंचुअली नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ, आप उठे रेडी हुए फटाफट, एंड देन यू सी कि घर में हेल्प नहीं आई या फिर खाना रेडी नहीं था, यू हैव टू रश टू ऑफिस। रास्ते में जाते हुए आपको जैम मिल गया, आप कह रहे कहाँ फंस गए हम, जल्दी जल्दी करते हुए सम हाउ निकले, ऑफिस गए, आपने देखा सम ऑफ द स्टाफ इज एब्सेंट, और मे बी दैट योर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड, या फिर कोई टास्क गिवन था वो नहीं हुआ, या डील कैंसिल हो गई, या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। एंड में माइंड में ये आ जाता है आज का तो दिन ही खराब था। होता है कभी कभार, मुंह से निकलता है कि आज का दिन ही खराब था। तो दिन खराब नहीं था, जिस थॉट को आपने मॉर्निंग में फीड करा वो ग्रो होता गया, और जब ग्रो होता गया तो सारा इवेंट आपका बैड कन्वर्ट हो गया। सो इसीलिए नो नेगेटिव थॉट्स अलाउड। चलो अभी पावर डिस्क्लोज कर ही देते हैं। द पावर विच आई एम टॉकिंग अबाउट, द मैजिक ऑफ एवरीथिंग लाइज इन दिस टू ब्यूटिफुल वर्ड्स कॉल्ड थैंक यू। बहुत छोटे शब्द हैं लेकिन बहुत प्यारे शब्द हैं, बहुत जादुई हैं, बहुत मैजिकल हैं। फॉलो करके देखो अपनी लाइफ में एंड यू सी हाउ योर लाइफ चेंजेस। आपको इतनी सुंदर बॉडी दी है भगवान ने। हैव यू एवर थैंक्ड योर हार्ट? छोटा सा हार्ट है, बचपन से द डे यू आर बॉर्न ही इज बीटिंग नॉन स्टॉप। एक बीट भी मिस कर जाए माय डियर फ्रेंड वी कैन गेट एन हार्ट अटैक। आपकी किडनीज, आपको पता है, जो नॉन स्टॉप फिल्टर कर रही है आपकी बॉडी से वेस्ट को, इफ द किडनी गेट्स डैमेज्ड इट इज इरिवर्सिबल। डू यू नो दैट? There's a big kidney scam going on because of this reason, because kidney damage is not reversible. Are you grateful for your kidneys? Are you grateful for your fingers? Thumb ना हो तो कुछ होल्ड नहीं कर सकते हम। Are you grateful? कभी हमने सोचा है इतनी डेप्थ में, कभी हमने सोचा है हमें इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ बॉडी मिला है जिसको वी डोंट इवन केयर अबाउट। हर एक होली बुक में इसका डिस्क्रिप्शन करा गया है, ईदर बाइबल, गीता, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब। लेट्स सी हाउ। कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एग्जाम्पल है, जो भी आपके हाथ में है एक बार थ्रो करो एंड जस्ट सी क्या वो वापस आता है या ऊपर ही रह जाता है। जब ये यूनिवर्स का लॉ है, नेचर है, तो हाउ कैन वी स्टॉप इट? आप जैसी एनर्जी एनवायरनमेंट में रोटेट करते हो वो उसी फोर्स से आपके पास वापस आती है। हमने देखा लाइक द मॉर्निंग थॉट, यस, यू रीप व्हाट यू सो। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आम का बीज लगाओगे आम का ही पेड़ आएगा, नीम नहीं आएगी उसमें से। गौतम बुद्धा ने बहुत अच्छा बोला है, लेट अस ऑल राइज अप एंड बी थैंकफुल फॉर। आपने आज सपोज बहुत कुछ नहीं भी सीखा, थोड़ा बहुत तो सीखा है, उसी के लिए थैंकफुल हो जाओ। और हम कहते हैं अगर आपने थोड़ा भी नहीं सीखा, गौतम जी कहते हैं थोड़ा भी नहीं सीखा, तो एटलीस्ट आप बीमार नहीं पड़े। और वो कहते हैं चलो अगर सपोज करो बीमार भी पड़ गए तो हम वी डिडंट डाई। आर यू ग्रेटफुल? इन एनी सिचुएशन प्लीज स्टे ग्रेटफुल। गौतम बुद्धा हैड टोल्ड वन मोर थिंग, जैसे एंगर है, इट इज लाइक अ हॉट कोल इन योर हैंड, यू इंटेंट टू थ्रो इट एट समबडी, राइट? सो बिफोर थ्रोइंग इट एट समबडी इट इज गोइंग टू बर्न योर हैंड ओनली। सो इसीलिए माइंड योर फीलिंग्स। मोहम्मद सेड दैट ग्रैटिट्यूड फॉर द अबंडेंस, जो भी आपको लाइफ में मिला है प्रेजेंट में, आज आप इस यहाँ बैठे हैं, यू हैव अ चेयर, वंडरफुल एसी वर्किंग, एसी काम नहीं करेगा 2 मिनट भी बैठ नहीं पाएंगे हम यहाँ, लाइट्स हैं, क्या कंफर्टेबल एनवायरमेंट है, यू हैव वाटर फूड अवेलेबल विद फॉर यू। इफ यू गेट ग्रेटफुल फॉर वट एवर अबंडेंस यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंश्योरेंस फॉर योर फ्यूचर, दैट अबंडेंस विल कंटिन्यू। गौतम जी हैज सेड वन मोर थिंग, लाइफ जीने में सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, एक तो ग्रैटिट्यूड और एक जॉय, नथिंग एल्स। बट वी ऑल आर रनिंग इन रैट रेस, वो चाहिए ही है, बट साइमल्टेनियसली अगर ये इन्वॉल्व कर लें इट विल बी अ वंडर फॉर अस। लाओ त्सू, ये चाइनीज फिलोसोफर थे। ये सब आपका होली बुक्स के थ्रू आई हैव जस्ट टेकन आउट दीज कोट्स टू टेल यू दैट व्हेन गॉड्स एक्चुअली फॉलो इट देन हु वी आर। लाओ त्सू वाज अ वेरी फेमस चाइनीज फिलोसोफर एंड ही टोल्ड, आपके पास जो भी आज है उसके लिए कंटेंट रहो, हर चीज को रिजॉइस करो। When you realize you have nothing lacking in your life, कुछ भी किसी चीज की कमी नहीं है, when you realize this,
then the whole world belongs to you. लॉर्ड कृष्णा ने बहुत अच्छा बोला है कि जो भी मुझे प्यार से देता है मैं उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट करता हूं, राइट? लाइक ही सेड, अगर एक तुलसी का पत्ता भी आप मुझे भोग में देते हो, इट इज लाइक अ छप्पन भोग फॉर मी. सो कितना ग्रेटिट्यूड उन्होंने करा है फॉर द लिटिल थिंग ही हैज. जीसस ऑलवेज यूज्ड टू से थैंक यू बिफोर परफॉर्मिंग एनी मैजिक. एल्बर्ट आइंस्टाइन, हमको पता ही है, ही इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट जिनकी बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, बट उनके बारे में एक चीज हमें नहीं पता, दैट ही यूज्ड टू डू ग्रैटिट्यूड एवरी सिंगल डे ऑफ हिज लाइफ. वो भी एक नहीं, दो नहीं, 100 लिखते थे. तो वी ऑल नो उनकी लाइफ में कितनी अबंडेंस है थी. इनफैक्ट ही डिड सो मेनी डिस्कवरीज. सीक्रेट बुक है, किसी को थोड़ा डिटेल में जाना हो, देयर इज अ सीक्रेट बुक बाय रोंडा बर्न, या यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप. उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है. प्लस ये भी लिखा है, अगर ग्रैटिट्यूड स्कूल में एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, इट विल डू वंडरस चेंजेस टू द सिविलाइजेशन. देयर विल बी नो वॉर्स एंड ओनली पीस इन द वर्ल्ड. ये सिर्फ बातें बोलने की नहीं है, दिस इज अ जेन्युइन फैक्ट. चलो भगवान को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? भगवान कौन होते हैं? भय से भूमि, जहां आप बैठे हैं, खड़े हैं, ग्रेविटी है तो खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं. जितनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स आपको मिली हैं सब मदर अर्थ से मिली हैं. ऑल द ट्रीज, एवरीथिंग इज ग्रोइंग हियर. आर वी ग्रेटफुल फॉर दैट? ग से गगन मतलब स्काई, जो ये ऊपर खुला आसमान आप देखते हैं, इट इज अ साइन ऑफ अबंडेंस. अगर ये छत में एकदम पास में कर दूं ना, वी वोंट बी एबल टू ब्रीथ, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाएगा. कभी देखा है वैष्णो देवी में, जब अर्धकुंवारी पे जो गुफा है, छोटी है राइट हाइट में, उसमें अगर थोड़ी ज्यादा देर आप रह लो ना, तो एक टाइम पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लग जाता है, बिकॉज देयर इज नो अबंडेंस अबव योर हेड. तो स्काई, आर यू ग्रेटफुल फॉर दैट? व से वायु मीन्स एयर. आई थिंक इसकी इंपॉर्टेंस हमें कोविड टाइम में मिली गई थी. जो हम सांसें ले रहे हैं ना, जिसकी हम बिल्कुल भी कदर नहीं करते थे, जब हमें कोविड में वी यूज टू पे हेफ्टी अमाउंट्स टू पे फॉर द ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दैट टाइम वी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर. आर यू ग्रेटफुल नाउ? अ से अग्नि मतलब फायर, सूर्य देवता. कई लोग तो जल देते हैं सुबह उठ के, तो इट इज नॉट अ जल, दे आर बेसिकली पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर द सन. सर्दियों में एक दिन धूप नहीं आएगी ना, तो यू विल एक्चुअली से कि आज धूप नहीं आई, आज तो बहुत ठंड है, कपड़े नहीं सूख रहे. दिस बेसिकली द आइडिया इज बिहाइंड. द सन इज सो इंपॉर्टेंट. लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट, देयर विल बी नो प्लांटेशन, एंड नो प्लांटेशन नो लाइफ. वाटर, न से नीर मतलब पानी. पानी जो आप पीते हो, 70% ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. डू यू रियलाइज? ब्लड फॉर्म होता है, इट कर्व्स डाउन योर थर्स्ट. कुकिंग होती है, बेदिंग होती है. जब आप ब्रश कर रहे हो बाथरूम में, इमेजिन करो ब्रश करते करते पानी नहीं आ रहा, तब आपको पता चलता है पानी की कीमत क्या है. आर यू ग्रेटफुल फॉर वाटर? दिस कंस्टिट्यूट भगवान. सो भगवान इज वॉट? द 5 elements of your life. सर्वत्र, भगवान is everywhere. Be grateful for what is being given to you rather than cribbing for what is not given to you. अब बहुत ब्यूटीफुल ये फीलिंग चार्ट है, जिसमें आप देखोगे ना, व्हाइट लाइन के ऊपर देयर आर सम फीलिंग्स जो व्हाइट लाइट की तरफ जा रही है, और ये व्हाइट लाइन डिमार्केशन है ना, इसके नीचे ब्लैक होल है, वहां पे कुछ फीलिंग्स जा रही हैं. एक बार आंखें बंद कर लो, मैं फीलिंग्स बोल रही हूं, आप सुनना और महसूस करना, ठीक है? लव, ग्रैटिट्यूड, जॉय, passion, excitement, enthusiasm, hope, satisfaction. कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा? अब एक बार और आंखें बंद करो. boredom, irritation, disappointment, worry, criticism, anger, hate, envy, guilt, despair, fear. अब कैसा लगा? अच्छा लगा? ये फीलिंग चाहिए किसी को? बोर नहीं रहा, शायद यही चाहिए होगा. ये नहीं चाहिए? तो इमेजिन करो, जब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा और आप 24 घंटे इन फीलिंग्स में रहते हो, तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती होगी. स्ट्रेस में पता है एम्बुलेंस भागती है बॉडी में, कॉर्टिसोल हार्मोन एक्टिव हो जाता है. अरे इमरजेंसी कंडीशन आ गई, स्ट्रेस 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 स्ट्रेस. अभी बताती हूँ उससे क्या होता है. सो
अब पावर ऑफ फीलिंग समझ लेते हैं। क्या फीलिंग करे जा रहे हैं, क्या है फीलिंग, समझ लेते हैं फीलिंग से क्या होता है। सभी ने देखी होगी तारे जमीन पे मूवी, आई एम श्योर हिट थी। तो उसमें आमिर खान ने चाइल्ड के फादर को एक बात बोली थी दैट सोलोमन आइलैंड है, वहां पे आपको पता है ट्रीज काटे नहीं जाते, वहां पे उनको मास कर्सिंग करी जाती है फॉर कंसेक्यूटिव फ्यू डेज, एंड आफ्टर इट वाज सीन दैट आफ्टर 10 days the trees used to dry and die. This is the power of feeling. एक्सपेरिमेंट किया गया था, 3 जार थे, तीनों में राइस रखा, एक पे लिखा हेट, एक पे इग्नोर, एक पे लव। तीनों को वैसी ही फीलिंग से देखा गया कंसेक्यूटिव फॉर 10 days. आफ्टर 10 days इट वॉज ऑब्जर्व्ड। आप प्लीज घर जाके करना, आपको भी पता चलेगा। 10 days के बाद दिखाई दिया जिसपे लव लिखा था उसके चावल तो वाइट थे, जिसमें हेट था वो ब्लैक हो गए, और जिसमें इग्नोर था ना वो पार्शियल ब्लैक पार्शियल वाइट। दिस इज द पावर ऑफ फीलिंग। एक और बात, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आई कैन टेल यू, जो हमारी बॉडी में डिजीजेस होती हैं ना, दिस इज बिकॉज ऑफ योर मेडिकल प्रॉब्लम्स और योर लाइफस्टाइल ईटिंग हैबिट्स। बट किसी को ये नहीं पता इसके अलावा भी आपके इमोशंस आपकी बॉडी में डिजीज को जनरेट करते हैं। कैसे? कैंसर सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, आपको पता है कैंसर क्यों होता है? When you hold resentment or anger towards anybody or anything in your life for long time, it generates into cancer. Constipation, when you are always stuck in the past, अटके पड़े हो एक ही थॉट, एक ही फीलिंग, एक ही सिचुएशन को लेकर, एंड यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन, उस सिचुएशन को नहीं भूल पा रहे हो, दैट कॉजेज यू कॉन्स्टिपेशन। थायराइड, विक्टिम, जब आप अपने आप को विक्टिम महसूस करते हो, when you feel that you're not able to speak out for yourself, that causes a problem with your throat and converts into thyroid. इसके बारे में और देखना है ना कितनी बीमारियां होती हैं। There is a very beautiful book by Louise Hay, Heal Your Mind. आप उसमें जाना और देखना, there are a lot of problems which are caused by your medical, which are caused by your emotions. So please mind your emotions from now onwards. They play so powerful role. अब फीलिंग समझ ली, इमोशन समझ लिए, ग्रैटिट्यूड समझ लिया। अब ये तो बताओ कि ठीक कैसे करें? हम तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटे का लेक्चर सुनते हैं, अच्छा महसूस होता है, फिर वापस से वैसे हो जाते हैं। कैसे फ्रीक्वेंसी रेज करें? पहली बात तो ऑलवेज स्टे इन शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। मॉर्निंग में उठते हो 10 ब्लेसिंग लिख लो। एक छोटी सी एक्टिविटी है, 2-3 मिनट भी नहीं लगते, सिर्फ ग्रैटिट्यूड, 10 ग्रैटिट्यूड इन अ डे राइट। उसके अलावा अगर फीलिंग बहुत डाउन जा रही है, मैजिक फुटस्टेप्स करो। ये साइंटिफिक प्रूवन है। जब 7 मिनट आप मैजिक फुटस्टेप्स करते हो, मीन्स अपने अंदर बोले जा रहे हो थैंक यू एंड यूर वॉकिंग। हो सकता है आपको थैंक यू उस टाइम पे निकले और उसके साथ में रीजन भी दे दो, बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार हमारे मन इतना सैड होता है, वी आर नॉट इन दैट गुड जोन, हम नहीं बोल पाते। सो थैंक यू एम्प्टी बोलो, बट वॉक फॉर 7 minutes एंड देन यू सी आफ्टर 7 minutes योर फ्रीक्वेंसी विल रेज। इट विल हैपन, करके देखना। अच्छा, अब हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? तो कभी देखा है एक क्लास में तो कोई भी नहीं रहता, आप ग्रो करते हो, हर क्लास के बाद टेस्ट एग्जाम दिए ना बचपन में, 10th के बाद 11th में गए हो, एग्जाम देकर गए हो, और 11th का एग्जाम डिफिकल्ट होता है 10th से, सबको पता है ना? जब ग्रो करते हैं लाइफ में डिफिकल्टी तो आती है। अगर वो 11th का एग्जाम आप पास कर जाते हो तो 12th ईजी हो जाती है, राइट? सिमिलरली लाइफ इज लाइक एन एग्जाम। जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आती है या पेडिमेंट्स आते हैं, तब क्या करना चाहिए? एक ही आंसर है लाइफ का, कुछ नहीं करना, दिमाग छोड़ दो, थैंक यू, और जस्ट बिलीव इन द पावर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स माइट टेक सम बफर टाइम टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट कीप अ फेथ इन यूनिवर्स। अब ये बहुत अच्छा बैलेंस दिखाया है, फीलिंग है बेसिकली ये। सो थ्रू आउट द डे हम कोई महात्मा थोड़े ना है कि हम तो बिल्कुल खुश रहेंगे, भाई जोन अप डाउन जाते हैं, कोई बात नहीं, वेल सेड। बट हमें एक काम करना है, सिर्फ 51% अपनी फीलिंग को ना पॉजिटिव जोन में रखो, गुड जोन। मैंने बताया था ना फीलिंग चार्ट अबव द वाइट लाइन, और 49% बिलो में रख सकते हो, कोई बात नहीं, वेल डन। जब हम किसी चीज को जैसा रोटेट करते हैं एनवायरमेंट में, ये तो पता है हमें, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वो वापस घूम के आता है आपके पास, राइट? अच्छी जोन में रहोगे, अच्छा जोन वापस घूम के आएगा, एंड यू सी हाउ योर वर्क फ्लरिशेस। क्रिबिंग इंसान देखा था ना, कुछ नहीं मिलता उसको, वो दुखी रहता है,
भगवान भी बोलते हैं तू अपने हाल अपने पास ही रखो भैया, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं तुम्हारा। नाउ पीईटी, पीईटी होते हैं पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। भगवान साक्षात उतर के नीचे नहीं आते कि आप यहां गलत कर रहे हो, सही करो, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, दिस इज बैड फॉर यू, नोबडी कम्स। वो अपने मैसेंजर्स भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस, मे बी पीपल और सिचुएशंस। नाउ यू हैव टू लर्न फ्रॉम द सिचुएशन। वो तो सिखाया है, थैंक यू बोलो और आगे चलो, बट वो सिचुएशन रिपीट ना हो उसके लिए क्या करें? उससे सीखो। किसी ने आपको धोखा दे दिया बिजनेस में, तो इसका मतलब ये नहीं हम उल्टा कर दें, हम तो विश्वास करना सीख जाए। ना ना ना, आपको क्या करना है? आपको इजीली ट्रस्ट नहीं करना, ये सीखना है अपने बिट्रेयल से। जब बहुत कंफ्यूजन हो रही है, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भगवान मैसेज दे रहे हैं दैट गेट कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, वट एवर यूर डूइंग इज बेस्ट। जब फियर होता है, डर किसी चीज का, उस पर हमें क्या करना है? सिर्फ भगवान पे फेथ, यूनिवर्स की पावर पे फेथ, इट विल बी रिजॉल्व्ड। व्हेन योर वर्क इज नॉट फ्लरिशिंग, बहुत मेहनत करते हो, मेहनत तो रिक्शे वाला भी बहुत करता है ना, जब बहुत मेहनत करते हैं वर्क फ्लरिश नहीं हो रहा, तो व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क, वेयर एम आई लैकिंग, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग। जब बच्चे आपसे झूठ बोलते हैं, क्या करना है? यू डोंट हैव टू आर्ग्यू विद देम, यू हैव टू लर्न टू बी देयर फ्रेंड। जब आपको हर छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होती है, क्या सीखना है? पेशेंस, काम। जब गुस्सा आता है बहुत जल्दी जल्दी, तो क्या सीखना है? एक्सेप्टेंस, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, हम चाहते हैं दुनिया हमारे हिसाब से चेंज हो। दैट्स व्हाई वी लर्न एक्सेप्टेंस, वी शुड लर्न एक्सेप्टेंस। नाउ दिस इज वेयर फोकस गोes, एनर्जी फ्लोज। इट इज अ वेरी famous saying by Tony Robbins. So okay, so I think we are short with time. Thank you so much. Thank you. Send our heartiest gratitude. Like she said, the power of gratitude to Situations, or it can be people which are sent by universe. भगवान खुद तो नीचे नहीं आते बोलने that you are doing something wrong in life. So he will always send you the messengers or the situations, maybe in the form of people, so that you learn from your situations. So for example, hello. So for example, if you are facing a problem, like for example आपको लाइफ में betrayal मिला है, किसी से धोखा मिला है, so you don't need to learn कि आपको उसके लिए betrayal का opposite, नेक्स्ट स्लाइड से करूं, ठीक है। बहुत फेमस सेइंग है टोनी रॉबिन्स की, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। सो फॉर एग्जाम्पल, कभी हम देखते हैं दैट हमने किसी का थॉट, वी थॉट ऑफ, वी कॉल्ड समबडी एंड दैट पर्सन सेड अरे आई वाज अबाउट टू कॉल यू। सो क्या हुआ? आपने एक थॉट एनवायरमेंट में रिलीज करा एंड दैट थॉट रीच्ड हिम एंड थॉट्स fast travels really fast. So क्या हुआ? That person got the sense that you are, you made a thought and it received by him. So wherever you will flow your focus, the energy will flow there. And उसके लिए हमारा brain 2 parts में divided होता है, basically conscious and subconscious. Conscious is like 5% of your brain, which ends up into logical reasoning and questioning. But जो आपका subconscious brain होता है, it has nothing to do with that. जो आपकी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं before this, why it happens? Because that whatever feeling and emotion you are holding in yourself, that goes to your subconscious brain और वो sponge की तरह उसको absorb कर लेता है. So whatever you have a feeling and thought in mind, that generates in your body as a disease. We have already seen this. So why can't we do affirmations for our brain? Like कुछ ऐसे थॉट्स को फीड करना अपने माइंड में, सो दैट योर सबकॉन्शियस ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन दैट पैरामीटर्स. अब आप एक बार मेरे साथ बोलें जोर जोर की, आई एम अलाइव, आई एम हैप्पी, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम लव्ड,
I am power. कैसा लगा? अच्छा लगा ना? It gives you the sense as if it is actually happening. जब आप ये non-stop अपने brain को बोलते हो, it gets imprinted into it. And then it becomes the nature of your lifestyle and your life becomes like that. अब बहुत अच्छी बात है, जब कभी हम टीवी या रेडियो सुनते हैं तो उसमें अगर कोई पर्टिकुलर चीज हमें अच्छी नहीं लग रही, हम क्या करते हैं, वी चेंज द चैनल, रिमोट उठाते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, स्लाइड्स को चेंज कर रही हूँ, नहीं अच्छा लग रहा, अभी नेक्स्ट पे जाना है, आई एम चेंजिंग. सिमिलरली लाइफ में जब हमारी फ्रीक्वेंसी लो होती है तो हम उसको डेलिबरेटली चेंज क्यों नहीं करते? इफ वी चेंज, एज आई टोल्ड यू, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये फैक्ट है. आप जैसी फीलिंग एनवायरनमेंट में रिलीज करते हो वैसी फीलिंग आपको वापस आती है, ये तो फैक्ट है, हमने देखा है. तो हम ऑलमोस्ट हमेशा नेगेटिव ऑरा में रहते हैं. सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, दैट व्हेन यू थिंक नेगेटिव, द नेगेटिविटी गोज एंड देन इट फ्लोट्स इन द एनवायरनमेंट एंड देन इट कम्स बैक टू यू. उससे क्या होता है, आपके पास नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएटेड है. सो क्या होता है, वी ऑफन फॉल सिक, क्योंकि हम उसी पैरामीटर में सोच रहे हैं, हमें ये तकलीफ है, घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, मेरे को ये तकलीफ, मुझे ये बीमारी, तो वही चीज आएगी ना वापस. सो लेकिन आपको बटन चेंज करना पड़ेगा, लाइक द रिमोट का बटन. और हेल्दी रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब चेंज द रिमोट, चेंज द बटन ऑफ द रिमोट. सिमिलरली गुस्सा कोई बुलाता नहीं है, सोचता नहीं आज मैं गुस्सा करूंगा, नहीं, गुस्सा तो आ जाता है. क्यों? आपका ऑरा ऐसा क्रिएटेड है. लेकिन आपने क्या करना है, चेंज दी बटन थ्रू दी रिमोट, और आपको काम रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. सिमिलरली अब सोचो, सपोज करो कि सारे पैरामीटर्स बता दिए, खुश कैसे रहना है, फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे, बट समहाउ नहीं हो रहा है, तो कैसे करोगे? अब आप देखो इन दोनों इमेजेस में आपको सबसे अच्छी इमेज कौन सी लग रही है? एक है क्रैंकी, एक है हैप्पी. क्रैंकी बढ़िया है ना, ये हॉर्स कितना अच्छे से, नो, क्यों? सो वी वुड लाइक टू राइड ऑन अ काम हैप्पी हॉर्स ऑलवेज. क्रैंकी जो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा, ही विल डेफिनेटली मेक अ स्ट्रिप. सो हमें वो नहीं करना, हमें इमीडिएटली सोचना है दैट वी हैव टू गेट ऑफ द क्रैंकी हॉर्स डेलिबरेटली एंड देन सिट ऑन द काम हैप्पी हॉर्स. वो करना पड़ेगा आपको. सो बहुत अच्छा सेइंग है, न्यूटन का लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन. सो अभी क्या करा, कई लोग सोचते हैं ना कि यार बुरे लोगों के साथ ना, सॉरी अच्छे लोगों के साथ ना भगवान बुराई करता है, ऐसा थॉट आता है ना, ऑलमोस्ट हमारे मन में आता ही होगा ये. बट ऐसा नहीं है. हमने क्या देखा, आपका जो भी एक्शन था, आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी फीलिंग किसी के लिए गई, वो घूम के ऑपोजिट वे में आपके पास आएगी और उसी फोर्स के साथ आएगी. नॉट नेसेसरी कि उसी फील्ड ऑफ लाइफ में आए जो आपने देखे थे ना, व्हाट वी वांट. इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ मे बी हेल्थ, wealth, family, any form, but surely it will return back to you. But हमारा motive ये नहीं है that we think about it then. We only have to think good, have faith in the power of universe and leave it to God. हमें किसी का बुरा नहीं सोचना. We just have to do our karma and that too in an absolutely amazing way. This is the beautiful saying, as always, a thankful person is thankful under all circumstances, no matter what. बुरी सिचुएशन है, थैंक यू. अच्छी सिचुएशन है, थैंक यू. सैटिस्फाइड एंड ग्रेटफुल पर्सन इज हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड. अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें तो आई कैन एक्सप्लेन यू विद अ वेरी नाइस स्टोरी. मुझे स्टोरी याद आ रही है एंड आई एम श्योर यू विल लव इट. ओके, द स्टोरी ऑफ अ रेवन. रेवन एक क्रो होता है. So इसकी स्टोरी है. So Raven was one day he was crying on the branch of a tree, बैठा था, रो रहा था, and his tear dropped on the saint cheek. Saint ने देखा कि मेरे somebody is crying. He saw कि Raven रो रहा है. He has asked him, why are you crying? He said, I don't love my life. I want to die. Because no, he said, why? He said, because nobody loves me. Everybody shoo me away. They don't like me, so I don't want to live my life. तो सेंट ने बोला, I have a magical power.
I can convert you to some other bird. You tell me, what do you want to become? He said, I want to become a swan. He said, I will make you swan, but I would like to tell you that please go to swan first. जाओ उससे पूछ कर आओ कि is the swan happy in his or her life? उसने कहा okay. He flew to swan. Swan के पास गया. I really like you. I want to be like you. You are so beautiful. Everybody loves you. The swan said, but I'm not happy in my life. He said, why? He said, because I have only one color, white. I have no other color in my life. I like to be a parrot. Then the raven flew to parrot. Parrot के पास गया. You are so beautiful, so colorful. People like you. I want to become like you. But parrot said, I'm not happy in my life. He said, why? He said, because people trap me in a cage and I cannot fly freely in the air. I like peacock because nobody traps him. He is beautiful. I want to become like him. Then the raven flew down to peacock. Peacock के पास गया तो वो zoo में था. बहुत सारे लोग उसको देखने आए थे. So when the people went away, तो raven peacock के पास गया that I really like you. You are so beautiful, so colorful. Everybody loves you. People come and watch you. So I want to become like you. But peacock said, I'm not happy with my life. He said, why? He said, because people trap me in a zoo and they pluck my feathers. It hurts me. I want to become like you, raven. He was shocked. He said, because you can fly freely in the air, nobody cages you, and you are so happy. So ultimately, he also felt raven is happy. Raven understood. He flew back to the saint. He said, I'm sorry. I love my life. I don't want to become like anybody. So I think this proves this statement that satisfied and grateful person is the happiest in the world. So I am grateful. Are you? Are you? Welcome to the world of gratitude. Thank you so much for listening.